Hi everyone. Today I'm going to talk to you about how to prepare CLAT without coaching. Obviously, I am one of those persons who do understand that not everybody has the money, the resources to study in premier CLAT institutions. See, if you have the opportunity and if you have I would say, the money, if you have the opportunity, you have the money, and if you have the time, if you have the time, see, I would always advise you that okay, take an offline coaching, take an offline coaching. I would always say advice to you, because the entire purpose of this video is not to cater to those who can pursue an offline coaching, but my intent is to make this video relevant to answer the queries of those people, those students, those who want to do it without coaching. Some of us don't want to do from coaching because also we don't want that name tag to be associated that we are of this institution and that institution. Majority of the students do not take into coaching for these three factors. They either don't have the opportunity, मतलब क्लाट की उनकी ऑफलाइन कोचिंग उनके शहर में है नहीं, उनके पास पैसे नहीं हैं, या जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं गिवन टाइम पीरियड के लिए वो भी उनके पास नहीं है। तो उनके पास अगर 3 ही महीने हैं क्लाट को, तो वो कोचिंग जाएंगे, वो 1 लाख रुपए फिर भी मांगेंगे, 90,000 मांगेंगे, नहीं होते हैं हमारे पास। तो तीनों में से आप अगर किसी एक फैक्टर पे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे बहुत सारे जो कंटेंट स्पेसिफिक क्लाट ओरिएंटेड जो हमें टिप्स चाहिए रहती हैं, प्रिपरेशन की गाइड, प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए रहती है, मेंटोर चाहिए रहता है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्स प्रेप चैनल में आई विल बी अवेलेबल विथ यू थ्रू आउट योर क्लाट जर्नी। अगर आप हमारे क्लाट मिनी प्रोग्राम में हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो स्टूडेंट्स जो 30 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में हैं, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड, रियलाइज द importance that I give to them, the efforts that I take for them. But those who are also generically, the people, those who accidentally come on this channel, you will find a lot of content for free where I will be telling you a lot of things. So kindly subscribe to the channel, and let me come back to the main point, that whether it is an easy thing to do or not. So I would always say that if you have a mentor present, right, it is always better than self confidence, because some of the times, most of the times, this is largely overconfidence. You do not know about clat and you are only confident, maybe your English is proper, maybe your reading skills are good, but it's always helpful to take up a mentorship, because mentorship helps you in streamlining the syllabus. If you can do it on your own, it's very advisable. Streamlining the syllabus means that you get to know the do's and the don'ts. The mentor gives you a task, a homework, practice, something, a discussion that you on the otherwise would be very difficult for you to pursue, right? Then there are daily tasks, daily dose of motivation, the excerpts from the anecdotes from the journey in the law school gives you a sense of motivation and reasoning as to मेरा law school का journey कैसा हो सकता है, and the opportunity to make multiple friends before CLAT. CLAT हो जाने के बाद कुछ लोग NLSIU जाएंगे, कुछ लोग राम मनोहर लोहिया जाएंगे, कुछ लोग MNLU जाएंगे, कुछ प्रयाग NLU प्रयाग में जाएंगे, कुछ सिम्बाइसिस लॉ स्कूल में जाएंगे, कुछ VIPS में जाएंगे, कुछ निरमा में जाएंगे। इसी कोचिंग के बच्चे जाएंगे जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, जहाँ से तुम सपोर्ट ले रहे हो। तुम हमारे क्लाट मिनी में भी हो तो भी तुम्हें लॉ तो करना ही था, ये डिसीजन तो तुमने बहुत पहले ही ले लिया था कि तुम्हें लॉ करना है। तो अभी से उस कोचिंग में तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे अलग अलग लॉ स्कूल के, दोस्ती रहेगी तो सबसे 5 साल में रिश्ते बने रहेंगे। और म्यूचुअली क्या होता है, किसी कॉलेज में फेस्ट है, तुम्हारा कोचिंग का दोस्त पढ़ता है, तो तुमने जिक्र कर दिया तो वो आ गया, पार्टिसिपेट कर दिया, उसकी टीम को रजिस्टर कर दिया। कहीं इंटर्नशिप करने गया है तुम्हारा दोस्त, उसको लॉ स्कूल से जॉब लगी, तो वो कनेक्शन आपको हेल्प करता है, राइट? तो मेंटरशिप का, चाहे आप ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें, हमारे से पढ़ें कहीं और पढ़ें, तो मेंटरशिप का तो रोल बहुत ज़्यादा है। मतलब आई वुड नॉट एडवोकेट एनी वन टू गो फॉर अ सेल्फ प्रिपरेशन। जिसने क्लाट को एक बार अपीयर कर लिया है,
एक बार आपने क्लैट को अपीयर कर लिया है और फर्स्ट अपीयरिंग में आपने कोचिंग ली थी, तो हो सकता है कि आप सेकंड अटेम्प्ट में कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फ़र्स्ट अपीयरेंस आपने खुद से किया था, ठीक है, तो सेकंड अटेम्प्ट में रिस्क मत लीजिए, प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग द बिजनेस कल्चर, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्लैट इज़ वन ऑफ दोज एग्जामिनेशंस जहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ एक एनकम्पासिंग अवेयरनेस भी रिक्वायर्ड होती है अक्रॉस ऑल सेक्शंस, वो कोचिंग में ही मिलती है। फिर दूसरा है, अब अगर मान लीजिए आपने डिसीजन ले भी लिया है जो भी है, तो आप कैसे, हाउ टू परस्यू इट। सो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिलेबस। कंसोर्शियम की वेबसाइट पर जाके सिलेबस को पढ़ें और वर्ड बाय वर्ड उसको कॉपी करें, उसको उतार लें, उसको दोहरा लें, उसकी एक कॉपी निकालें और उसको चिपका लें, सामने वाली वॉल पे स्टिक कर लें, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको दोहरा लें, आपको स्कोप जो है और आपके ऑब्जेक्टिव जो है पढ़ाई का, उसमें काफ़ी हेल्प होगी। जब आप न्यूज़पेपर पिक करते हैं ना, व्हेन यू पिक अप न्यूज़पेपर्स, और उसको जब आप सिलेबस से लिंक करेंगे, व्हेन यू विल लिंक इट विद द सिलेबस, तो न्यूज़पेपर के कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू कवर एंड ऑल, दैट इज़ वेयर द सिलेबस प्लेज अ मेजर रोल. Next part, the second step is that you need to run through the previous year questions. It is the homework that every aspirant should do at the first instance, that you need to run through the previous year questions, and don't start like very aggressively in the at the outset. Okay, every day you need to pick up one section each day. Just pick up one section each day. So for example, you have a passage CLAT 2020 ka logical reasoning, then we have logical reasoning of 2021, then 2022, then 2023, then 2024. So you have around 1 2 3 4 5 set of papers. 5 set of papers, you multiply it by 30, you get at least 150 questions of critical reasoning. Now these are very vital for you because you have to pre-practice it. Go through it. 150 questions you can take 5 days, so you can only take 20 to 30 questions each day. Because you are preparing on your at the front, तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और आपने 20-30 क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर के सॉल्व किए। आंसर कीज़ आपको ऑनलाइन मिल ही जाती हैं। आप हमारे एनालिसिस के वीडियोस देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइव लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे पॉज करके आप स्क्रीन में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपना आंसर पेज पर लिखिए, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करिए, देखिए कि आपके कितने नंबर आए। इसी तरीके से आप लीगल को 5 दिन, जीके को 5 दिन, इंग्लिश को 5 दिन देके ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन में स्टार्ट कर लीजिए। व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर, कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? तो ये जनवरी टू नवंबर का जो टाइम होता है, गिवन द फैक्ट कि आपका पेपर दिसंबर में क्लैट होगा, तो आपको जनवरी टू नवंबर के ये जो 10 मंथ्स हैं, 10 to 11 मंथ्स आपके जाने चाहिए प्रिपरेशन में। तो पहला महीना जो होता है, फर्स्ट मंथ, would go into the previous year questions ka analysis and consistent reading of the newspaper. If you are able to maintain this, good. After that, this will do nothing important but will give you a sense of confidence and an edge in the competition in comparison to other aspirants. The third step is, again, find a mentor. Because when you have done your homework, now you will understand and you will be able to evaluate mentor. अब आप इस स्टेज पे अगर कहीं कोचिंग में जा रहे हैं और आप कहीं कोचिंग में डेमो आपको दे रहे हैं, मान लीजिए 3 डेज़ का, उस 3 डेज़ में जो टीचर्स आ रहे हैं आप उनको इवैल्यूएट करिए इसी पैरामीटर पे। किस पैरामीटर पे? कि क्या वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलेट करके चीज़ें बता रहे हैं। अगर ये अक्रॉस आपको जीके, लीगल, सीआर, मैथ्स, हर जगह पे टीचर जो पढ़ा रहा है वो प्रीवियस, this is something that you will always keep this in your mind when you are taking demo 3 days. Try to pick out teachers across all segments and sections where they are referring to the previous year questions, and because you have already done your homework, a previous analysis, and you will come to know what you are being taught, what you are being told is relevant as per the CLAT or not. Because I have seen most of the times these coaching institutions, they will put their best faculties as demo pieces and they will not provide you the quality content. Faculties most of the times do not know about the syllabus and the subject, which is quite difficult for me to absorb and sink in, and that is why this is the caveat that I will like to share with you.
Mentorship fee should not be the issue because there are other initiatives like mine which are not that costly. For example, I train students for CLAT at just rupees 2500 per month, and I basically provide all sections including a set of 20 mocks that you will get in the month of October. ये पोस्टल सर्विस के थ्रू पोस्ट होके आपके घर आएगा आपके दिए गए एड्रेस पे, बट ये आपको अक्टूबर से मिलेगा, दैट यू विल गेट इट फ्रॉम द अक्टूबर. 2500 पर मंथ, नॉट एक साथ, पर मंथ. पूरे ईयर की फ़ीस एज सच 30,000 है, बट आपको मंथली पेमेंट का जो स्कोप है वो मिलता है. आप आराम से मंथली मंथली पे करते रहिए, चाहिए तो 4 महीने का एक साथ पे करके छुट्टी करिए, इंस्टॉलमेंट्स ले लीजिए. ऑल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर, इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन. So what I have a proposal that if you are really really deserving and you can make your mark, I am ready to teach you free of cost. If you are able to score 25 out of 25 in my scholarship test, I will teach you for free. I will teach you for free if you will be able to score 25 out of 25 in my scholarship test. This scholarship test includes one passage from English section, one passage from legal, not legal knowledge, related to legal, one passage from GK, and one passage from analytical ability. Right? One passage from analytical ability. So overall, this includes set of 25 questions which I will be testing you. GK will not be current affairs. GK will not be current affairs. It will be static GK. And let me tell you, class 6 to class 10th syllabus, what all you have studied till from class 6th till class 10th will be the area of my scholarship test. If you're able to score, I will teach you free of cost. Right, so you can also avail this opportunity of at least taking up my scholarship test. I usually take that test live, one to one. But again, I would say 2500 per month is not that costly. And for students, those who have already appeared in CLAT, I usually waive off fees based on your CLAT score. So online mentorship is not a challenge. There are a lot of good other mentors also that you can look up to them. That's completely up to you. But having said that, if you have found a mentor who is going to stick along with you in the preparation, you are preparing it on your own. You are not going to a coaching, घर से तैयारी कर रहे हैं. अब आपको पिकअप करना है एक न्यूज़पेपर को, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, विच एवर वन यू चूज. वेल, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड बिकॉज it's very difficult to say that you have to pick only one, because one is not enough and two are not possible. So it is a double-edged sword. So there are certain segments of the Hindu, there are certain segments of the Indian Express that cannot be included, because क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी रहता है ये फिल्टर करना कि क्या नहीं पढ़ना है. राइट, तो ओवर द टॉप इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो सोच रहती है वो यही रहती है कि हम सभी कुछ प्रिपेयर करेंगे, विल प्रिपेयर एवरी ऑड इन्फॉर्मेशन, विल बी द मास्टर ऑफ ऑल subjects and domains, which is a time killer. So this habit of becoming the Buddha of CLAT, the Gautam Buddha of CLAT, is actually a time wastage activity. So refrain from this. And if again you are taking guidance, then it will be checked what exactly are you studying. The fifth step is, and this is like time barbad BC, is that stop looking up to the Hindu analysis videos. They are good as shit, right? You cannot rely on them, you cannot look up to them. वीडियो देख के तो ना पेपर होता है, ना ही क्लैट क्लियर हो पाता है. ना न्यूज़पेपर ही पढ़ पाओगे, ना ही क्लैट क्लियर हो पाएगा. यू हैव टू सिट योर इन्वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द न्यूज़पेपर. एनालिसिस देख के पेपर बेटर समझ में आता है. प्लीज़ रिमेंबर, व्हेन यू विल बी फेसिंग unseen passages in CLAT, there would be no pre-analysis that will be provided to you or post-analysis that will be any beneficial for you. So newspapers give you the sense of anonymity and the randomness of topics. So you have to train yourself. Newspaper is not only about understanding every topic in brief, but to train yourself to absorb the uncharted information, unmarked information on or unheard information and make sense out of it. This is where the newspapers play a role. So stop watching the videos. Next is the sixth step.
And this is the final step, that you need to fix a steady routine of at least 5 hours. That you need to fix a steady routine of at least 5 hours. Now, how you can do it? So, school going kids, इनकी ज़िंदगी इज़ ऑलवेज लाइक, दुश्मन न करे क्लाट के सपने ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है. जो स्कूल जा रहे हैं अभी 11th 12th में हैं और क्लाट का ख्वाब देख रहे हैं, आपके लिए ये गाना काफ़ी रेलेवेंट होगा. क्लाट का सपना देखा था और अब क्लाट करें कि स्कूल करें, इसी गम में फंसे हुए हैं. सो आपके लिए एडवाइस यही है कि वर्क ऑन द बेसिक्स. आपको एटलीस्ट अपने ड्रीम में 2 घंटा इन्वेस्ट करना है. दिस शुड नॉट बी अ चैलेंज. यू हैव ऑल द टाइम टू गिव 2 hours टू दिस प्रिपरेशन. ओके, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल. दैट इज़ वाई कि आप 11th और 12th में कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ परस्यू करें अगर आपको क्लैट जैसे एग्जामिनेशन को देना है तो. दो PCM PCB वालों का ऐसा कोई बायस नहीं है कि PCM PCB वाले ये पेपर नहीं निकाल सकते, बट एक सेंस ऑफ ओरिएंटेशन चाहिए रहता है इस एग्ज़ाम के प्रति. एक इंग्लिश नॉलेज, एप्टीट्यूड चाहिए रहता है, एक अवेयरनेस चाहिए रहती है जो PCM PCB वाले स्टूडेंट्स को नहीं रहती है. तो यहाँ पे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक एज मिला होता है ओवर PCM PCB. बट ऐसा नहीं है कि PCM PCB वाले नहीं निकाल सकते, राइट? क्योंकि इनमें एनालिटिकल एबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है PCM PCB वालों में. दैट गोड विदाउट सेइंग. तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वालों का एज ज़्यादा रहता है, बट PCM PCB उसको शॉर्ट टाइम में कैच कर सकते हैं. तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 2 घंटा जो है वो तो देना ही पड़ेगा, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो. स्टूडेंट दोज हु आर टेकिंग अ ड्रॉप, माई सिंपल क्वेश्चन इज़, तेरे को दूसरा क्या काम है भाई? तेरे को ऐसा और कौन सा काम है क्लाट की प्रिपरेशन के अलावा? कौन से तेरे को 4 बच्चे पालने हैं जो तू तैयारी नहीं कर सकता, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नहीं दे सकता? तो ये लाइन को ज़रा याद करिएगा हर दिन सोने के पहले, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, कि तुम्हारा इतिहास दोहराएगा क्योंकि तेरा हरकत ही अजीब है. तुम्हारा सिलेक्शन लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी हरकतें वैसी की वैसी ही हैं जैसी पहले भी थी. तुमने कुछ नहीं चेंज किया. तुम लास्ट टाइम भी बिना शेड्यूल के तैयारी कर रहे थे, इस बार भी कर रहे हो. तो हजरात हजरात हजरात, शर्म कर, थोड़ा अमल कर. समझ गए? दोज हु आर टेकिंग अ ड्रॉप, ये आपका क्या है, 6th स्टेप है कि आपको एक डिसिप्लिन रूटीन में आना है 5 आवर्स के. वो क्या है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलिट्री डिसिप्लिन वाला टाइम टेबल क्या होगा क्लैट के लिए. मिलिट्री डिसिप्लिन वाला टाइम टेबल क्या होता है हमारा, कि करना है तो करना है. क्लैट का लक्ष्य किसको चाहिए था? तुमको चाहिए था. NLU में किसको जाना है? तुमको जाना है. किसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी NLU जाके? तुम्हारी सुधर जाएगी. तो कौन लड़ेगा ये तुम्हारी लड़ाई? तुम लड़ोगे. तो इसीलिए मिलिट्री डिसिप्लिन पे आ जाओ. 7 बजे सुबह नींद नहीं खुलती है, ये बहाने देना बंद कर दो. उठना है तो उठना है. रात को देर तक सोते हैं, क्यों सोते हैं? सोए हैं तो कॉस्ट पे करिए. सुबह 7 बजे उठना है तो उठना है. मंडे टू ट्यूसडे लीगल नॉलेज को दीजिए 2 दिन. कॉन्सेप्ट बिल्डर और न्यूज़पेपर आपको डेली करना है. तो लीगल नॉलेज के कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्टिंग के 3-4 महीने लगते हैं. 3 to 4 months हमारा प्लानर बनाने में लगता है लीगल नॉलेज को. तो आपको हफ्ते में उसको 2 दिन देना है. और ऑब्वियसली ये करने में आपको 2 से 4 घंटे लगेंगे. अखबार को करने में 2 घंटे लगेंगे. हो गए आपके 6 घंटे फिक्स. वेडनेसडे टू थर्सडे हफ्ते में वागेन 2 दिन आप क्रिटिकल रीजनिंग को दीजिए. देखिए, लीगल नॉलेज और क्रिटिकल रीजनिंग 2 ऐसे सेक्शंस हैं जो कि मैक्सिमम स्कोर बेयर करते हैं. 55 मार्क्स का सेगमेंट इन्हीं दोनों से आता है. इस 55 मार्क्स में आप बहुत आराम से 47 to 48 मार्क्स निकाल सकते हैं. यानी 50% मार्क्स आप इन 2 सेक्शन से निकाल सकते हैं क्लाट में, जो आपको चाहिए अपना सिलेक्शन कराने के लिए. 96 मार्क्स पे आपको टॉप 5 NLUs गारंटीड होता है. टॉप 5 NLU गारंटीड होता है 96 मार्क्स पे आउट ऑफ 120. तो 50% इस 96 के आपके सिर्फ CR और लीगल से ही आ जाते हैं. सो CR और लीगल वो सेगमेंट है जो मैक्सिमम एक्यूरेसी, मैक्सिमम स्कोर देता है और एक तरह का प्रिडिक्टेबल पोर्शन है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी सेट है, राइट? सो इसमें आपको सॉल्व पैसेज करना है. नोट मेकिंग करनी चाहिए एडिटोरियल्स की पिछले 7 दिन की एक साथ बैठ के. हफ्ते में 2 दिन दीजिए. 3 घंटे 6 आवर्स दीजिए. 6 to 8 आवर्स देना है आपको. और इसमें आपको एटलीस्ट पिछले 7 दिन में आए गए कम से कम 28 से 30 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं. 28 to 30 एडिटोरियल्स
इन 2 दिनों में पढ़ने हैं. That could be the schedule that you can prepare from. 28 to 30 editorials. If you are doing this, reading it, making notes, working on the vocabulary, you are hell working on a critical reasoning. If you are able to pull this off for at least 4 months straight, I am dead sure तेरा क्लाट सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता. You are well prepared. Friday and Saturday, well, compilation of notes of GK as one-liners. न्यूज़पेपर पिछले 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं, नो एडिटोरियल से नोट मेकिंग भी कर रहे हैं, एडिटोरियल्स को भी समझ रहे हैं, राइट. सो आपको क्या करना है, उसको ही अब जीके की तरह से कंपाइल करिए. यहाँ पे कोई मैगज़ीन अगर आपके पास है तो उसको रीड करिए. टारगेट सेट करिए कि 20 टॉपिक्स मुझे करने हैं इन द नेक्स्ट 2 आवर्स. देन आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर एंड देन अगेन आई विल कवर 20 टॉपिक्स इन द नेक्स्ट 2 आवर्स. तो उसी में मैं रीड कर लूँगा और फिर बाद में मैं नोट्स बना लूँगा, राइट. टॉपिक वाइज नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स बनाना, ये भी आप करिए. ये आपका रिवीजन मटेरियल रहेगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन, very important for your revision exercise, so you don't have to forget and lose out on this, right. And practicing 20 questions of maths, so you will find that your 2 days of Saturday, Friday, Saturday, the weekends are not really free. You have got to cover up the bulk of the CLAT section where knowledge plays a key role, GK as well as quant. So this is the advice that I will have to give it to you. For 20 questions, you can pick up any standard competitive book, R.D. Sharma, R.S. Agrawal, M.L. Agrawal, whatever is available at hand, and you have to practice 20 questions. That's it. Simple, easy 20 questions solve करिए. Percentage, mensuration से, ratio proportion से, decimal से. Try to find out work, time and place, जो भी इस तरह के questions होते हैं, unitary method जिसको हम कहते हैं, वहाँ से करने की कोशिश करिए. It will help you play a huge role. Well, Sundays are booked for attempting one mock, and after this mock for 2 hours, when you attempt the mock, after this 4 hours have to go into group discussions and group analysis, which is very vital. So you need to make sure that you have a proper group with whom you can discuss the mock, because marking right option is not material. Using the right logic to mark the right option is the most vital aspect that you need training on, that you need discussions on. So this is one aspect where you will be working. So I hope you are following what I'm trying to tell you, that these are the aspects that you cannot ignore. And also there are few other informations that I would like you to follow, practice. First things first is that bare minimum of number of newspaper articles that you should cover on a single day would be 16, because at least 16 passages are to be read of around 300 to 350 words to be read within 90 minutes. This is the kind of bare minimum expectation. So 16 articles के नीचे कुछ भी मत करिए, right. People prepare to do 120 questions in 120 minutes. That's like everybody is trying to focus on this aspect. Well, those of you who are preparing on your own, I have a task for you, and I have a target as well. The target is that you don't have to appear 120 questions in 120 minutes. तुम्हें अपना mindset ऐसे prepare करना है कि 90 minutes में मुझे 120 question करने हैं. So this is the bare minimum that you have to practice, and this is the target where you have to reach. People will be able to solve it within 120 minutes, but you would be someone who would solve it within 90 minutes. How to do it? By increasing your reading speed. Please do not compromise on this part, and this requires consistent practice. For subjects, try to give at least 2.5 hours per day, and for newspaper at least 2.5 hours per day. Do not go beyond this. This could be the bare minimum or average number of hours you should invest in your preparations. 8th step is that whatever you have studied so far, you need to put it to practice. So you need to analyze and assess the mocks as well. 20 mocks before CLAT, bare minimum is not just to be only attempted, but is to be analyzed, right? So remember that it takes around 3 to 4 hours to analyze our mocks, work on our mistakes, and reattempt the mocks. So you appear the mock first, then you have an answer key, so you cross check it, creating a table.
You create a table of number of attempts, correct, incorrect, and all of this, and you assess it. You keep that table with you. It's not very important that you assess the mock on the very same day, but it's always advisable that the day you receive your answer key, analyze the mock on the very same day, because you will be able to remember why you have marked what you have marked during those 2 hours. This is the major part. Anything which is less than 3 to 4 hours of analysis is not a good analysis. Stop, playing yourself around. Well, it would be very beneficial if you have a mentor who can do this analysis for you, sit with you for 3 to 4 hours after every mock, discuss with you each question and clear the doubt. Well, in CLAT Mini, the entire objective is this only, to keep you hinged to the process and keep you always motivated. Finding the right answer is not important. Using the right logic to reach to the right answer is very very important. लॉजिक सही है तो से एक साला सवाल भी गलत नहीं होगा. दैट्स माई पर्सनल गारंटी टू यू. सो यू नीड टू रिफाइन योर लॉजिक्स. वाई यू आर मार्किंग वट यू आर मार्किंग, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लॉजिक सही है तो एक सवाल भी गलत नहीं होगा. दैट इज़ वॉट इज़ द इंटेंट. एंड द 9th स्टेप, you can say the penultimate step is that mock scores को कभी दिल पे नहीं लेने का, because they are only mocks, they are not CLAT का paper. So scores are also mocks. Sometimes they will be mocking at you, sometimes you will be surprised at the mockery of the score that you have received, कितना ज़्यादा कैसे आ गया, but then they are just mocks. But तैयारी हमेशा उद्देश्य क्या रहना चाहिए? तैयारी ऐसी करनी है कि पिछले मॉक के कंपैरिजन में इस मॉक में मेरे 5 मार्क्स ज़्यादा हों और मेरे 10 अटैम्प्ट ज़्यादा हैं. अगर पिछले मार्क उसमें मैंने 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स 36 मार्क्स आए हैं, तो मेरे इस अगले मॉक में मेरे मार्क्स एटलीस्ट 41 होने चाहिए और क्वेश्चन मैं 80 अटैम्प्ट करूँगा. फिर अगर मैंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरे मार्क्स 41 हो गए हैं, तो नेक्स्ट मॉक में मेरा टारगेट है कि मैं 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा और स्कोर को रफली अराउंड 46 मार्क्स तक ले आऊँगा. तो आपको ये पता चलेगा कि 100 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने के लिए एक अलग तरह का एफर्ट लगता है, प्लस एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है. कभी कभी हमें मार्क करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस को आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन पे, और 100 क्वेश्चंस को एफिशिएंटली कितने टाइम में आप अपीयर करते हैं, एफिशिएंटली आपको कितना टाइम लगता है, ये इम्पॉर्टेंट बनता चला जाएगा. और आप देखेंगे धीरे धीरे एक्यूरेसी, और विद ईच मॉक आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो रही है. देयर वुड बी सर्टेन एरियाज जब ड्रॉप आएगा, मॉक डिफ़िकल्ट आया, क्वेश्चंस कम होंगे, एक्यूरेसी कम होगी, स्कोर कम होगा, बट ये वाला जो बेंचमार्क है ये हिट करना आ जाएगा आपको जब आप ये वाला टारगेट सेट करते हैं. पिछले मॉक से 5 मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो और 10 अटैम्प्ट हो. आपके बस में मार्क्स नहीं होते, आपके बस में 10 अटैम्प्ट ज़्यादा होते हैं. जिस दिन तुम 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन 2 घंटे में करना सीख जाओगे, 70% ऑफ द टास्क इज़ ऑलरेडी अचीव्ड एंड यू आर विद इन दोज 5000 सेट ऑफ पीपल जो ये कर सकते हैं पूरे भारत देश में. तो ये चीज़ आपको करनी है, टारगेट करनी है. ठीक है, यही आपका अगले वीक का टारगेट बन जाता है. कंसिस्टेंटली खुद को रीवैम्प करते रहिए, रीइग्नाइट करते रहिए, रीजुविनेट करते रहिए. यू कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग एंड री थिंकिंग योर स्ट्रैटेजीज. Plan, create a map, reconstruct it, redo and repeat. That is what is the advice as the 9th step that I have to offer for all of you, those who are preparing for your CLAT. And then comes the final step, that is the 10th step. Please remember, the entire object of a preparation, taking mentorship, preparation, practicing hard previous year paper analysis, mock, is that at least we have 3 sections which are very very strong for CLAT. I mean, these are the advices, the 10-step advices that I am trying to tell you, which will play a huge role in your entire journey. Even if you are going to a coaching institution, you will be able to understand that यार ये चीज़ें तो कहीं नहीं कोई बताया. तो कभी भी इन चीज़ों को, इन एडवाइस को नज़रअंदाज मत करिएगा. आप 3 सेक्शंस उठा लीजिए. आप लीगल सेक्शन को देखिए, 30 क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से. आप जीके को देखिए, 30 क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से. आप क्रिटिकल रीजनिंग को देखिए, 25 क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से.
और आपके ये 85 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये आपके अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो इसमें आपके इनकरेक्ट कफ सबसे कम होंगे। पर जीके जैसे सेक्शन को हम कभी स्ट्रॉन्ग बना नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा अपना 25। जैसे ही 25 हुआ तो हमारे पास सीधे सीधे 50, 30, 80 क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। तो नंदलेस कोई भी 3 सेगमेंट आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर निकलता है जब 3 सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। जीके कर लिया तो बहुत अच्छा है, पर जीके एट द कॉस्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, एट द कॉस्ट ऑफ लीगल नहीं करना चाहिए। क्यूटी को स्ट्रॉन्ग बनाया भी लेंगे तो भी आपको टाइम के अंदर ही करना है, 10 मिनट से ज़्यादा आप क्यूटी को नहीं दे सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला एरिया है, 3 सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखना है, 2 को वीक लेके जाना है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रिटिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड बाकी सब लोग करते हैं, बट एक्यूरेसी कोई नहीं बना पाता है। आपको एक्यूरेसी बनाना है, यही आपके पूरे साल भर की प्रैक्टिस का पर्पज़ है। एक्यूरेसी किन 2 सेक्शंस में रहेगी? क्रिटिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड में उतना ही मार्क करते हैं जितना आता है और मैक्सिमम स्कोर निकालते हैं। पूरे साल सब कोई जीके पढ़ता है, पर कोई एक्चुअली में नहीं पढ़ता है, क्योंकि एंड में किसी को घंटा याद नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता। एंड में सब कन्फ्यूजन हो जाता है, रिवीजन करें, कंपाइलेशन करें, क्या करें। आपको उसको डेली करना है और अपने नोट्स बनाते रहना है, छोटे छोटे नोट्स, हैंड आउट्स। एक ही कॉपी रखिए अपनी 100 पन्ने 200 पन्ने की, सिंगल सिंगल लाइन उसी में लिखते रहिए, कभी लिखिए कभी मत लिखिए। ये चीज़ें तो जीके आप डेली करते रहिए, राइट। ये अपना आखिरी का सरदर्द नहीं बनाइएगा। एक्यूरेसी चेस सिर्फ सीआर और लीगल में करते हैं। जीके और क्यूटी में आपको पता ही रहता है कि आपने जो मार्क किया है वो सही है या नहीं। तो जीके और क्यूटी में फालतू के तुक्के ना लगाएं, वही मार्क करें जो आपको पक्का पक्का दिख रहा है, या आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, या आप उस आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। जीके और क्यूटी में एक्यूरेसी के साथ ही मार्क करना चाहिए। जीके क्यूटी में एक्यूरेसी बनाने जैसी कोई बात नहीं रहती है, बिकॉज आपको वही मार्क करना है जो आपको आता है। यू डोंट प्ले अराउंड विद जीके एंड क्यूटी एंड गेट अ नेगेटिव। I don't know why coaching institutions do not tell you this, but take it as a piece of advice, final advice. एक्यूरेसी का मतलब रहता है कि जहाँ पे गलत करने के चांसेस हैं बट कंपेरेटिवली कम हैं, बट हमें अटेम्प्ट फिर भी लेना पड़ता है। तो सीआर और लीगल में जो हम मार्क करते हैं हमें नहीं पता होता है कि यही सही आंसर है कि नहीं है, बट एट दैट मोमेंट दैट इज़ मेकिंग द मोस्ट सेंस टू मी, सो आई विल टेक दैट रिस्क बिकॉज आई हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, आई एम ओनली कन्फ्यूज बिटवीन द 2 एंड वन इज़ मेकिंग अ बिट मोर सेंस। दो आई एम नॉट कंक्लूसिवली एबल टू से कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आंसर से, बट लेट्स टेक दैट रिस्क। सो दीज risks that you take develops the skill of maintaining the accuracy, and critical reasoning and legal are the 2 sections. Scores कभी बढ़ेंगे कभी गिरेंगे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मिनिमम 105 के नीचे तो कभी नहीं जाने चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द इंटायर पर्पस एंड इंटेंट इज़ कि डी डे वाले दिन, जिस दिन आप क्लैट का पेपर दे रहे हो, सब कुछ सही है और 105 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हुए हैं, 100% सेलेक्शन होगा आपका अगर आपने ये 10 स्टेप फॉलो कर लिए तो। दिस इज़ माई पीस ऑफ एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन द वीडियो सिंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप अभी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ एक वंडरफुल कमेंट अपना रख दीजिएगा। आई नो आपकी ज़िंदगी का ये 1 मिनट जाएगा, पर ये वीडियो के लिए, ये मेरी चैनल ग्रोथ के लिए, मेरे इंडिविजुअल मोर कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जितना आप कमेंट करेंगे, ये अच्छा वीडियो, ये अच्छी एडवाइस, ये जेन्युइन एडवाइस और 10 लोगों को रिकमेंड होगी, उनके रिकमेंडेशन बॉक्स में जाएगी। सो अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें एंड यू रियली फील दैट ये और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे मैसेजेस ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन नेशनल यूनिवर्सिटी।